Very good morning बच्चों. Today I am back with a new video. In this video we will be discussing about total internal reflection और जिसे बोला जाता है TIR, right? So before going to the total internal reflection, you should have the knowledge about the critical angle. So first of all we will be discussing about the critical angle, then we will go for total internal reflection, right? So what do you mean by critical angle actually? Here is a interface, right? This interface, below this interface a denser medium is there, and above the interface that is a rarer medium is there, right? I am mentioning rarer medium, right? This is a denser medium, this is a rarer medium, right? So this is critical angle, means the angle of incidence, right? The angle of incidence will be of such a value for which the refracted ray will be parallel to the interface, or we can say that the refracted ray will be at an angle of 90 degree to the normal, right? So at this point the incidence, angle of incidence will be called as the critical angle, right? यहाँ पर डेंसर मीडियम आप देख सकते हो जिसका हम पकड़ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1, and for rarer medium the refractive index is μ2. So according to critical angle, what is it? It is the angle of incidence corresponding to which the angle of refraction becomes 90 degree, right? It is denoted by C. समझ में आया सबको? देखो पहले क्या होता था, जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को लाइट पास करवा रहे थे तो क्या होता था, if this is the normal drawn at the point of incidence, this is the incident ray, what happens when we move from the denser to rarer medium, then light move away from the normal, right? यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हो कि आज we change the angle of incidence, ठीक है? जब angle of incidence will be more, means ये angle of incidence इतना था यहाँ पर, अब हम angle of incidence बढ़ा दिए, ठीक है? क्या हुआ, the angle of refraction will also increase, and again the case will be there. What will happen, फिर से हम angle of incidence बढ़ा दिए, then what will happen, this refracted ray will be like this, right? यहाँ पर आप देख सकते हो angle of incidence ऐसा था, धीरे धीरे angle of incidence आप बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो धीरे धीरे क्या करेगा, इंटरफेस की तरफ आएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. व्हाट हैपेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज ग्रेजिंग ओवर द इंटरफेस, राइट? तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही आप बढ़ाओगे, वन पॉइंट विल बी देयर when the refracted ray will be grazing over the interface, right? In that case इस angle of incidence को हम क्या बोलेंगे, critical angle, ठीक है? और जो यहाँ पर जो refracted ray is parallel to the surface, इसे क्या बोलेंगे, grazing emergence बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो this is called grazing emergence, because the emergence ray is grazing over the interface, right? That's why we call it grazing emergence, and at this point the angle of incidence is called as critical angle, right? So according to the Snell's law we can write sin I by sin R equal to μ2 by μ1, right? sin I देखो यहाँ पर sin I by sin R
दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो साइन आर का वैल्यू कितना यहाँ पर मिल रहा है आपको 90 डिग्री। तो साइन आर के जगह हम पुट कर सकते हैं साइन आई बाई साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू टू इज μ2 by μ1. This μ2 is for rarer medium, this μ1 is for denser medium. तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ होगा मिलेगा, लेकिन हम ये पकड़ कर चलते हैं μ2 बाई μ1 वेयर μ2 इज़ द रेयरर मीडियम एंड μ1 इज़ द डेंसर मीडियम। यहाँ पर देख सकते हो μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1, राइट। तो साइन आई यहाँ पर क्या है, साइन आई इज इक्वल टू जो आई है इसका क्रिटिकल एंगल के साथ सेम है, सो साइन आई कैन बी रिटन एज साइन सी, राइट। सो वी कैन राइट साइन आई आज साइन सी बाई साइन 90 का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1 इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 इज द रेयरर मीडियम फॉर एयर, μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बिकॉज वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ एयर इज 1। देन अगर μ1 के जगह हम इसे म्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, राइट। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू एंड तो यहाँ पर क्या मिलता है साइन सी इज लेस देन 1 फॉर वाटर एयर इंटरफेस, राइट। If the medium denser medium is water and the rarer medium is air, then we can write that sin c is less than 1 because सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है एयर का है। तो म्यू जो भी होगा वाटर हो या किसी और ग्लास हो या किसी और डेंसर मीडियम हो दैट विल बी मोर देन 1, ठीक है। तो दिस फ्रैक्शन विल बी total this fraction will be less than 1, so sin c will be less than 1 if the rarer medium is if rarer medium is air, right। तो for air अगर rarer medium होगा then sin c will be less than 1। तो यहाँ पर हमको नोट करना है 3 चीज़ें। When I is less than critical angle, when angle of incidence is less than critical angle, then what we find? We find refraction, right। मतलब यहाँ पर जो angle of incidence है if I is less than c, what happens? Refraction will occur, right। ये होगा आपका डेंसर मीडियम, ये होगा आपका रेयरर मीडियम, राइट। व्हेन आई इज लेस देन सी मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अगर क्रिटिकल एंगल से आपका कम आया देन वी फाइंड रिफ्रैक्शन, राइट। व्हाट हैपेंस व्हेन आई इज इक्वल टू सी, व्हेन आई इज इक्वल टू सी वी फाइंड ग्रेजिंग एमर्जेंस। अभी मैंने बताया आपको व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजिंग एमर्जेंस, तो आपको ऐसे मिलेगा व्हेन दिस आई विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल देन वी विल फाइंड द रे विल बी मूविंग लाइक दिस और वी कैन से द रिफ्रैक्टेड रे इज ग्रेजिंग ओवर द इंटरफेस और वी कैन से ग्रेजिंग एमर्जेंस, राइट। एंड इन द थर्ड केस व्हेन I is greater than C, we will find total internal reflection, right। अगर ये angle of incidence greater than critical angle हो गया then we will know we will not find any refraction or grazing emergence, we will find total internal reflection, right। The incident ray will be moving back to the same medium, right। यहाँ पर the angle of incidence will be equal to angle of reflection, इसे बोला जाता है total internal reflection, right।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल टॉक डिटेल अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ. यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट. व्हेन अ लाइट इन ए, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज ए rarer medium, right. When light rays coming from this point incident normally, right, इसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, राइट. नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स द लाइट रे आर इंसिडेंट ओवर द इंटरफेस पैरेलल टू द नॉर्मल, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, there is no deflection or no deviation in the path of light ray and we see the light ray moving in a straight line without any deviation, right. इसे बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस. अगर लाइट रे कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट टेक इट एज I1, राइट. देन व्हाट हैपेंस, रिफ्रैक्शन ऑकर्स, राइट. दिस इज योर नॉर्मल. आज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को लाइट पास कर रहा है. व्हाट हैपेंस, वी विल फाइंड ए रिफ्रैक्शन हियर. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड, राइट, तो धीरे धीरे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द लाइट रे इज ग्रेजिंग ओवर द इंटरफेस, राइट. व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड more, what happens, there is no refraction and no grazing and we will find the light rays going back to the same medium, right. इसे बोलते हैं हम total internal reflection. in this case we can see ये जो I1 है ये पकड़ लेते हैं I2 and इसे पकड़ लेते हैं I3. तो in this figure we can say for refraction, this is the condition for refraction. This is normal incidence, no bending is there and light is moving in a straight line. Here due to the angle of incidence is less than critical angle, so what happens, refraction occurs. Here I1 is less than the critical angle. यहाँ पर क्या हो रहा है, I2 is equal to the critical angle. That's why we are finding grazing emergence. Grazing emergence, right. Or we can see the for in the case of I3 which is greater than the critical angle. That's why we are getting a total internal reflection. मतलब समझने की बात यह है कि जब तक आपका लाइट रे ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस आ रहा था वो धीरे धीरे सीधा ही जा रहा था, लेकिन आज we increase the angle of incidence, what happens, the refraction occurs. Again we are increasing the angle of incidence, what happens, the refracted ray grazing over the surface. And when we again increase the angle of incidence above the critical angle, what happens, total internal reflection occurs. The light rays are not going to the rarer medium, they are bouncing back to the denser medium and this is called total internal reflection, right. So 3 केसेस मैंने पहले ही बताया है और यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके दिखा दिया कि फॉर angle of incidence less than critical angle then we get refraction. For angle of incidence which will be equal to critical angle then that will be grazing emergence, and if the angle of incidence is greater than critical angle then we will find a total internal reflection, right. So condition for total internal reflection are, condition for total internal reflection, generally there are 2 conditions. The first condition is light ray moving from denser to rarer medium. ये जो केस आपने देखा यहाँ पर लाइट रे कहाँ मूव कर रहे हैं, these light rays are moving from denser to rarer medium, denser to rarer medium.
रिवर्स केस पॉसिबल नहीं हो सकता. रेयरर से डेंसर आएगा तो वी कैंट फाइंड द इफेक्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओनली द केस इज देयर व्हेन लाइट रेज मूविंग फ्रॉम denser to rarer. In this case we can find the phenomenon of total internal reflection, right? So the first condition is light rays moving from denser to rarer medium, and the second condition is angle of incidence is greater than critical angle. If these two cases are satisfied, then we can find a phenomenon of total internal reflection. यहाँ पर मैंने बताया when I3 is greater than C or critical angle, here we are finding the internal reflection, right? So these are the two cases which will satisfy the total internal reflection. So there are some points you have to note down. So first point or important point for this in critical angle or total internal reflection is since the critical angle C equal to since the critical angle C equal to sin inverse 1 by mu, right? क्योंकि हमने बताया था sin C is equal to 1 by mu, right? Then mu will be equal to C will be equal to sin inverse 1 by mu. So since the critical angle C which is equal to sin inverse 1 by mu, so greater the value of mu, smaller will be the critical angle. So greater the value of mu means अगर जो मीडियम है वो ज़्यादा डेंसर होगा देन इट विल हैव स्मॉलर क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल अगर स्मॉलर होगा देन तो केसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी मोर, राइट? जिसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा इन उस केस में आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? तो डेंसर मीडियम जितना डेंसर होगा, मतलब इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास म्यू ऑफ water is less than glass, or we can say mu of glass is greater than mu of water. So critical angle in case of glass will be less than the critical angle with respect to the water, right? ग्लास में critical angle कम होगा और वाटर के केस में critical angle ज़्यादा होगा, right? तो second point is since mu depends upon lambda means the wavelength, right? Mu depends upon the lambda wavelength of light. C also depend upon lambda. C means critical angle. जैसे कि म्यू लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करता है एंड म्यू एंड सी आर रिलेटेड टू इच अदर. अगर म्यू लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करेगा तो सी विल बी ऑल्सो भी डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा, लेकिन वो डिपेंडेंस कैसे है वो बात करते हैं, ठीक है? सो ग्रेटर द लैम्बडा स्मॉलर द म्यू, राइट? एंड greater will be the critical angle, right? म्यू और लैम्बडा के बीच रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू स्मॉलर विल बी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा और वेवलेंथ स्मॉलर विल बी द म्यू, एंड स्मॉलर द म्यू greater will be the critical angle. So we can write that we can say that lambda and mu are inversely proportional to each other, but lambda and critical angle is directly proportional to
each other. Greater the lambda, greater will be the critical angle, but smaller will be the refractive index, right? And as we know, the lambda is responsible for the color of the wave, color of the light, right? So we know that lambda of red is greater than lambda of violet, right? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि greater the value of lambda, greater will be the critical angle. So we can write critical angle for red light will be greater than critical angle of violet light, right? So this is the important thing you have to remember, that greater the lambda, smaller will be the mu, or greater will be the critical angle. As wavelength is associated with the color of the light, so different for the color of light has also different critical angles, right? So हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा कलर में से किसका क्रिटिकल एंगल कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है from this relation, right? So another point is brightness of diamond, right? Since refractive index of diamond is 2.46, which is maximum. Mu for diamond is 2.46, which is maximum, and we have already said that for the greater the value of refractive index, smaller will be the critical angle, and critical angle जिसका ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आज इट्स क्रिटिकल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 24 डिग्री, राइट? ये जो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 24 डिग्री, विच इज मिनिमम. अगर हम दूसरे केस में कंपैरिजन करें, दूसरे मटेरियल की कंपैरिजन करें, उन सब में से सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका है, डायमंड का है, दैट इज 24 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एयर, राइट? Hence, on cutting the faces properly, almost all light falling on the any of the faces of the diamond have angle of incidence greater than 24 degree. Therefore, it suffers repeated internal reflection. Repeated internal रिफ्लेक्शन, ठीक है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर सॉरी क्रिटिकल एंगल अगर आपका 24 डिग्री आ गया, ठीक है, तो आपको बहुत सारा एंगल मिल रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिल रहा है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकता है, ठीक है? मतलब आप 25 डिग्री में इंसिडेंट करो या 26 डिग्री में, 27 डिग्री में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज बढ़ जाता है, ठीक है? फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी अकर्ड, राइट? तो जितना भी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल उसका कम होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज बढ़ जाएगा फॉर मेकिंग इट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? So in case of diamond we get total internal reflection more, that's why diamond the brilliance of diamond, that is called brilliance of diamond, right, is more, brilliance of diamond is more and it gets more sparking, right? Shining of air bubble in water is also due to the total internal reflection, right? Because the critical angle of water with respect to air is critical angle of water with respect to air is 48.75 डिग्री. डायमंड के केस में कितना क्रिटिकल एंगल था, 24 डिग्री. मतलब 24 डिग्री से ऊपर अगर आप इंसिडेंट करो तो दैट विल बी गेटिंग टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. लेकिन इन केस ऑफ एयर बबल उसका क्रिटिकल एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको इंसिडेंट कितने कहाँ से करना होगा, 48.75 डिग्री से ऊपर अगर आप इंसिडेंट करो लाइट को, देन व्हाट हैपेंस, शाइनिंग ऑफ एयर बबल अकर्स, राइट? तो
उसका अगर डायग्राम में से बनाए हम, दिस इज ए कंटेनर इन विच वाटर इज देयर, राइट, air bubble, this is the air bubble, here air is present and outside water, right? So whenever we pass, whenever light is incident upon this surface, what happens? It get reflected like this, right? So the shining of air bubble occurs. And a new point, another point, in case of the cause of mirage, the cause of mirage in hot days and looming in cold days, these are also due to total internal reflection. ये जो मिरेज का केस है, लूमिंग का केस है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बताएंगे, what are the applications of total internal reflection. But for now you have to remember that the cause of mirage in hot days, mirage hot day में आपको mirage दिखता है, in cold days आपको looming दिखता है, right? That is due to the total internal reflection, right? And the diamond shining of the shining of diamond is reduced if it is dipped in a transparent oil, because diamond is a shining material, but the shining of diamond is reduced if it is dipped in a transparent oil, right? Because critical angle of diamond oil interface is greater than the diamond air interface. जब हम डायमंड एयर इंटरफेस की बात कर रहे थे, उसका क्रिटिकल एंगल कितना था? 24 डिग्री था, विच इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग more total internal reflection, and this was the cause behind the brilliance of diamond. But when we put the diamond in a transparent oil, then the oil diamond interface has a greater क्रिटिकल एंगल, राइट? यहाँ पर 24 डिग्री था, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, सो वो लेस शाइनिंग होता है, ठीक है? नाउ विल हैव सम क्वेश्चंस अबाउट द क्रिटिकल एंगल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर एयर and glass interface, right? Air glass interface मतलब light is, this is the glass, this is air, light is moving from glass, find out the critical angle, right? मतलब ये angle of incidence will be the critical angle for which the ray will be grazing emergence, right, or grazing over the interface. तो critical angle glass air interface के लिए critical angle हमें निकालना है. So according to the formula, sin C equal to mu rarer by mu denser, right? Mu rarer is mu air, mu of air कितना दिया हुआ है? 1. म्यू डेंसर मतलब म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है? 1.5. तो 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2. 3/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5. तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा. तो साइन सी इक्वल टू 2/3, देन सी विल बी द क्रिटिकल एंगल. तो साइन विल बी इनवर्स हियर, साइन इनवर्स 2/3 विच इज इक्वलेंट टू nearly equal to 42 degree. So critical angle for air glass interface will be equal to 42 degree, right? Now similarly we can find critical angle for air water interface. पहले हम जो निकाले थे एयर ग्लास था,
अब निकालेंगे एयर वाटर इंटरफेस, राइट। सो एयर वाटर इंटरफेस मतलब वाटर से जाएगा लाइट रे टू द एयर, राइट। सो सेम फॉर्मूला साइन सी इक्वल टू म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर, राइट। म्यू रेयरर मतलब 1 एयर का, डेंसर मतलब 1.33, 1.33 को आप लिख सकते हैं ऐसे 4/3, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका, साइन सी विल बी इक्वल टू 3/4, दिस इम्प्लाइज सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, राइट। सो दिस इज नियरली इक्वल टू 49 डिग्री। सो ग्लास के केस में आपका क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा था, 42 डिग्री। इन केस ऑफ वाटर वी आर गेटिंग द क्रिटिकल एंगल ऑफ 49 डिग्री, राइट। सो critical angle for different transparent media with respect to air is provided or the shown in on the screen. You can see that for critical angle of water, which has the refractive index 1.33, has a critical angle of 48.75, right. And crown for the crown glass, you can see the refractive index is 1.52, but the critical angle is 41.14. And for dense flint glass, refractive index is 1.62, critical angle is 37.31. For diamond, you can see refractive index is 2.42, critical angle is 24.41. You can compare here that as the refractive index gradually increases, you can see there is a decrease in critical angle. So we can say that if the medium is more denser, then we can say that critical angle will be less. And as the critical angle is less, then we can find the probability of total internal reflection more, where the critical angle is less, right. Now this is the question. In the ray diagram shown here, calculate the speed of light in the liquid of unknown refractive index. Here liquid is there which has unknown refractive index. Refractive index is not known. This is the air medium. Light ray moving from the liquid grazing over the interface, right. So if the grazing over the interface means, then the angle of incidence is equal to the critical angle. If this is the critical angle C, then we can say that this angle is also C, because these two lines are parallel to each other. And if this angle is C, then we can say this angle is also C, right. So I have given that this is 30 centimeter, this is 40 centimeter. Let's name this A, O, B, right. So as we know from the formula, sin equal to 1 by mu, म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर. म्यू रेयर मीन्स म्यू एयर, एयर का कितना है 1, डेंसर आपको मालूम नहीं है, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, राइट. सो साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, बट साइन सी मीन्स दिस, और वी कैन से दिस. तो फॉर दिस ट्राइंगल ए बी ओ, फॉर दिस ट्राइंगल ए बी ओ, साइन सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलम बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलम बाई हाइपोटेनस. ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये इसका कितना होगा, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये 30 40, देन हाइपोटेनियस विल बी 50 सेंटीमीटर. तो हम लिख सकते हैं फॉर साइन सी दिस विल बी ओ बी बाई ओ ए, विच विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू. ओ बी कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है, ओ ए इज 50 centimeter, so equal to 1 by mu. This implies that mu will be equal to 50 by 30, or we can say that is 5 by 3, right. now you can see from the formula we know that mu equal to c by v. C means velocity of light. This CR is velocity of light in vacuum, and this V is the velocity of light in this liquid medium, right.
एंड इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो वैक्यूम में है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 इंटू और वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So we have to put the values of mu and c in this equation. So we can write here mu equal to c by v. mu का वैल्यू हमें मिला that is 5/3. c का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ by v. v हमको मालूम करना है. Then 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5/3. 3 ऊपर चला जाएगा. 9 इंटू 10⁸ बाई 5 आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट. सो आपका वेलोसिटी भी मिल गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन. कंप्लीट द पाथ ऑफ रे. राइट. सी फॉर ग्लास दे दिया है आपका. क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास दे दिया है 42 डिग्री. राइट. तो हमने 3 केसेस पढ़ा है. इफ आई इक्वल टू सी देन grazing emergence. If I less than c then refraction. If I greater than c then TIR. राइट. तो देखते हैं यहाँ पर आप देखो द लाइट रे इज कमिंग लाइक दिस. ठीक है. यहाँ पर 42 डिग्री एंगल दिया हुआ है. इज दिस द इंसिडेंट एंगल? नहीं. ये यहाँ पर कंफ्यूज होता है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए आपको हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अगर ये टोटल 90 डिग्री है, ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री दैट इज 48 डिग्री हो गया. ठीक है. यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है. 48 इज ग्रेटर देन 42. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. सो लाइट रे विल बी कमिंग लाइक दिस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. ये हो गया आपका 48 डिग्री. राइट. नाउ यू कैन से सी दैट ये हो गया आपका नॉर्मल एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस. तो ये अगर 48 हुआ तो ये भी 48 डिग्री होगा. ठीक है. यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस सरफेस. अगर ये 48 डिग्री है, ये कितना होगा 42 डिग्री बिकॉज टोटल है 90 डिग्री. ये 48 हो गया तो ये होगा 42 डिग्री. अब देखो आई इज इक्वल टू सी. यहाँ पर 42 डिग्री था क्रिटिकल एंगल एंड हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना है 42 डिग्री. तो क्या होगा ग्रेजिंग एमरजेंस. तो इस इंटरफेस के ऊपर लाइट रे पास करेगा. राइट. so this will be the complete path of ray. Right. Now another question. So here is then another question. Complete the path of ray. Critical angle for glass आपका कितना दिया हुआ है 42 डिग्री. Right. So the incident ray is 90 degree और 90 degree to the interface. Right. अगर 90 डिग्री आपका इंसिडेंट रे होगा तो there will be no deviation. So it will directly move or passed in a straight line. Right. And it will reach this point. तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा टू गेट द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो कैसे निकालेंगे. अगर ये 90 डिग्री है दिस इज 90 डिग्री. तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका दिस इज ऑल्सो विल बी 45 डिग्री. सो अगर ये 45 डिग्री होगा, ये टोटल 90 45 हो गया तो ये कितना हो जाएगा ये भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा. देखो क्रिटिकल एंगल कितना दिया है 42 डिग्री. 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री. देन वी विल गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. राइट. तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री. राइट. नाउ ये जो ऐसे आ रहा है दिस विल बी 90 डिग्री टू द सरफेस. तो ये डेविएट नहीं होगा और ऐसे बाहर चला जाएगा. राइट. नाउ अनदर क्वेश्चन. So this is a new case. The ray is incident over this at an angle 90 degree. Right. So complete the path of ray. C for the glass is here 49 degree. Right. आपका जो critical angle दिया हुआ है that is 49 degree. So what happens at this interface the
no deviation will be there because it is 90 degree incident over the 90 degree, that's why no deviation. After touching this surface we have to find the angle of incidence. कैसे find angle of incidence निकाले? नॉर्मल के साथ नॉर्मल निकाले तो ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसका वैल्यू कैसे निकाले? दिस इज 90 डिग्री, 30 डिग्री, सो दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री. ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो इफ दिस इज 60 डिग्री देन दिस विल बी 30 डिग्री. नाउ सी क्रिटिकल एंगल इज 49 डिग्री. आपका एंगल कितना आया है इंसिडेंस? 30 डिग्री. तो इफ आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल व्हाट हैपेंस? रिफ्रैक्शन अकर्स. ठीक है, तो ये ग्लास है, डेंसर मीडियम, एयर है, रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर, तो अगर जाएगा तो रिफ्रैक्शन हैपेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे विल बी bend away from the normal. This will be the angle of refraction. You have to find the angle of refraction. We know from the Snell's law, mu g into sin r, sorry sin I. Sin I कितना है? 30 डिग्री. sin 30 डिग्री will be equal to mu a of sin r, है कि नहीं? mu g आपका दिया हुआ है कितना? 3/2. sin 30 का वैल्यू कितना है? 1/2. mu a एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. साइन आर निकालना है. ठीक है, तो साइन आर विल बी इक्वल टू 3/4. दिस इम्प्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 विच विल बी नियरली इक्वल टू 49 डिग्री. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो दैट विल बी 49 डिग्री. राइट, नाउ अनदर क्वेश्चन. सो दिस इज अनदर कंडीशन. The ray of light is coming like this. Critical angle of glass is given 42 degree. Refractive index of glass is given as 3/2. Right. So as it is the normal incidence, then the light ray will be moving like this without any deviation. Right. If this is 90 degree, then this is also 90 degree. This will be equal to 30 degree. 60 plus 90. That will be 60 plus 30 will be 90 plus 90 180. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. राइट, यहाँ पर देख सकते हो क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी देयर. ये भी आ जाएगा आपका 60 डिग्री. राइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर पता करना है फॉर दिस सरफेस. अगर ये 60 डिग्री है, ये भी होगा 60 डिग्री, देन दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. राइट, नाउ हियर यू कैन सी 30 डिग्री इज लेस देन 42 डिग्री. राइट, सो रिफ्रैक्शन विल अकर, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये था ग्लास मीडियम, ये एयर है, रिफ्रैक्शन होगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल ये है, सो दिस विल बी आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन वी कैन सी फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, mu g into sin 30 degree equal to mu a into sin r. mu g into sin 30 will be equal to mu a into sin r. तो mu g कितना दिया हुआ है? 3/2. sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. mu a आपका गिवन है, sin r आ गया, तो sin r will be equal to 3/4 and r will be equal to sin inverse 3/4 which will be nearly equal to 49 degree. Right, so these are the various questions, and now we'll go for another question. Now see, we'll understand the concept of circle of illumination and how to find out the radius, area, semi-vertical angle and angular range. Right, so here you can see a point source of light is there and we are observing, a person is observing outside of the water surface. This is the water surface and this is the air medium. A person is standing in the air medium and looking into the water. Right, a point source of light is inside the water and the rays of light coming from the point of source are refracted like this. What happens? As the rays of light getting incident at an angle of critical angle, then it will be grazing over the interface. Then what happens? As the angle of incidence gradually increases
and when it is greater than critical angle, what happens? Total internal reflection occurs. So the light rays coming out of the water surface, appear to be in a form of circle, right? ये अगर हम ऐसे देखेंगे कि this is the last ray up to which light rays are coming from the water to the air medium. तो क्रिटिकल एंगल के साथ मिल जाने के बाद ये लाइट रे और एयर मीडियम को वापस नहीं जा रहा, ठीक है. तो इफ दिस लाइट रे इज द लास्ट लाइट रे विच इज गोइंग आउट ऑफ द एयर एंड इफ दिस इज द लास्ट वन विच इज ग्रेजिंग ओवर द इंटरफेस, राइट. तो बाकी जो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. मतलब अगर आप एक पॉन्ड के ऊपर या फिर स्विमिंग पूल के ऊपर से देखोगे, अगर एक लाइट सोर्स स्विमिंग पूल के अंदर लगा हुआ होगा और ऊपर से आप देख रहे हो तो आपको वो लाइट कैसे नज़र आएगा? द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम ए सर्कल, ऐसे नज़र आएगा. यहाँ से आगे जाओगे और यहाँ से आगे जाओगे तो लाइट रेज विल बी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड, राइट. लाइट रेज बाहर नहीं आ रहे हैं वाटर से. तो यहाँ तक आपका लाइट रे बाहर आ रहे हैं एंड दैट विल फॉर्म ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो उसका रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा हम पता करते हैं अभी कि कितना रेडियस होगा उस सर्कल का. तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका क्रिटिकल एंगल है, दैट्स वाई द लाइट रे इज ग्रेजिंग ओवर द एमरजेंस. अगर ये सी है देन दिस विल ऑल्सो बी सी. सो फॉर दिस ट्राइंगल, right, for this triangle we can say tan C will be equal to R by H perpendiculum by base. For this triangle, this is perpendiculum, this is the base, this is the hypotenuse, so tan C will be equal to R by H. लेकिन हमें पता है sin C equal to 1 by mu. हम लोग फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल वी नो दैट sin C equal to 1 by mu, राइट. sin C मतलब क्या है? परपेंडिकुलम, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है. अगर ये आपका एंगल सी है, साइन सी विल बी इक्वल टू पी बाई एच. पी के जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1. एच के जगह क्या लिखा हुआ है? म्यू लिखा हुआ है, ठीक है. तो अगर फॉर दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलम इज 1, राइट, हाइपोटेनियस इज म्यू, देन बेस विल बी व्हाट? म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, राइट. तो tan सी कितना होगा फॉर दिस ट्राइंगल? tan सी विल बी परपेंडिकुलम बाई बेस. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan सी विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, दैट विल बी इक्वल टू r बाई h. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड दैट r इक्वल टू h बाई म्यू स्क्वायर minus 1 का रूट ओवर, राइट. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेडियस, राइट. रेडियस आपका निकल गया, राइट. अब निकालेंगे एरिया. सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर के जगह क्या पुट करेंगे? h बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? पाई एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, इतना आ जाएगा आपका एरिया, राइट. और सेमी वर्टिकल एंगल क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पर देखो फिगर में, दिस इज क्रिटिकल एंगल. तो ये जो आपका कोन फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर सेमी वर्टिकल एंगल. यहाँ पर और एक सेमी वर्टिकल एंगल, यहाँ पर 2 सेमी वर्टिकल एंगल आपको मिल रहा है. तो ईच ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल विल बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, राइट. आपका यहाँ पर क्रिटिकल एंगल जितना फॉर्मेशन होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा. तो हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल विल बी इक्वल टू द semi vertical angle is equal to the value of
क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर इन केस ऑफ वाटर हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल कितना है 49 डिग्री। वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का, वाटर एयर इंटरफेस की बात करें तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 49 डिग्री। तो सेमी वर्टिकल एंगल भी कितना होगा 49 डिग्री ही होगा। ठीक है, और अब देखते हैं कि एंगुलर रेंज। इस टोटल को हम एंगुलर रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये एक सेमी वर्टिकल एंगल है, ये एक सेमी वर्टिकल एंगल है। सो ये टोटल एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर रेंज, राइट। सो एंगुलर रेंज विल बी C plus C, that is 2C। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल C है देन टोटल एंगुलर रेंज विल बी 2C, राइट। तो एंगुलर रेंज विल बी इक्वल टू 2 इंटू C और 2 इंटू सेमी वर्टिकल एंगल, जो भी आप बता सकते हो। अगर ये 49 डिग्री होगा क्रिटिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल विल बी ऑल्सो 49 डिग्री। सो टोटल एंगुलर रेंज हो जाएगा 2 इंटू 49 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 98 डिग्री, राइट। क्लियर हो गया। हाउ डू यू मीन बाय रेडियस, एरिया, सेमी वर्टिकल एंगल, एंगुलर रेंज एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट। अगर यहाँ पर एक लाइट सोर्स होगा तो आप अगर एयर मीडियम में हो और पुल के भीतर देख रहे हो, पुल के भीतर एक लाइट लगा हुआ है, देन यू विल बी सीइंग दैट द लाइट रेज आर कमिंग लाइक फ्रॉम ए रेडियस ऑफ दिस, राइट। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो in case of a fish what happens? So in case of a fish or a diver in water at depth h, if the fish is at a depth of h, or we can say the diver in water at a depth of h, he sees the whole world in a horizontal circle of radius r, right। you can see ये जो केस है, यहाँ से light rays in the previous cases the light rays were going from here to here, but in these cases we can see ऐसे ऐसे करके light rays are coming from rarer to the denser medium। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, कहाँ तक ये लाइट रे ऐसे आते जाएंगे, यहाँ से आपका क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, ये लाइट रेज यहाँ तक ही पास करेंगे अंदर तक। ठीक है, तो फिश जो होगा अंदर वो कितना एरिया सिर्फ देख सकता है। ठीक है, उसे वो अगर स्काई के ऊपर देखता है और देखने को चाहता है कि स्काई कैसा है, तो उसे कैसे दिखेगा, द स्काई विल बी सीम और अपीयर टू बी एज ए सर्कल, राइट। यहाँ पर ऐसे दिखेगा। ए फिश कैन सी ओनली ए सर्कुलर पैच ऑफ द स्काई विद इन ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, वाटर के केस में सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा हमने बताया अभी तक, अभी 49 डिग्री अप्रोक्सीमेटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सो द फिश कुड सी थिंग्स अबव द वाटर सरफेस विद इन एन एंगुलर रेंज। अगर एंगुलर रेंज की बात किया जाए तो 49, ये हो गया आपका 49, तो टोटल कितना होगा 98 डिग्री। एंगुलर रेंज होगा फिश का 98 डिग्री, बट सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा 49 डिग्री। ठीक है, और दिस विल बी द सर्कुलर पैच ऑफ द स्काई विद इन ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 49 डिग्री थ्रू विच fish can see the sky, right। So for more clarity I have given you an example through an image। You can see that image and you can realize that how the sky is looked from the sea surface, right, or the from inside the sea। अगर अब एक डाइवर सी के अंदर गोता लगा हुआ रहता है तो फिर वो ऊपर देखेगा तो उसको स्काई कैसे नजर आएगा। और इफ ए फिश इज स्विमिंग इनसाइड द वाटर देन व्हेन इट लुक्स टू द स्काई देन हाउ इट अपीयर्स एक्चुअली, राइट। सो यू जस्ट गो थ्रू these photos or these images, then you can have an idea of how the circular patch is looking from the water from inside the water, right। So that's all for the today's class। I hope you have understood well the concepts। Thank you for watching this video and have a nice day। If you have any doubt then you can ask me।